See, yesterday we started with time of supply. There are some sections. Section 12 is related to time of supply of goods and section 13 is related to time of supply of services. There are subsections also. In subsection 1, there is a meaning related to time of supply of goods, and so like as in 13 subsection 1. 12 subsection 2 is time of supply of goods under forward charge, and we have done it yesterday. Okay. So 12 subsection 3 is related to reverse charge. This point is also covered yesterday. So section 12 subsection 2, section 12 subsection 3, we have done it yesterday together with the examples. Section 12 subsection 4 is related to vouchers and 5 is residual cases, 6 is related to late payment fees. Likewise, we have section 13 subsection 3, 4, 5, 6. Okay, for services. So we have done time of supply under forward charge. We have three, just a quick revision, we have three dates earlier of all three dates: date of issue, date of last date to issue invoice, and receipt of payment, whichever will be earlier. But here receipt of payment will have two different dates sometimes they will give you one, but at times there are two different dates which is entered in the books of accounts and which is credited in the bank account. There are two dates, so whichever will be earlier will be selected. Likewise, we have done these charts are just to make you understand. It is a chart that will help you understand the concept very easily, and we have done examples related to that. And next we have reverse charge mechanism. So for goods we have done. For services it is pending because we have started everything for section 12, that is goods. Okay. So there are three again dates: date of receipt of goods, when you are receiving, because it is all the things here we have to think about a recipient. So here recipient will pay tax, no? Therefore, for recipient, we are trying to recognize the time of supply, because who is going to pay the tax? Recipient. And therefore, time of supply will be determined for the recipient. And for recipient, it is receipt of goods. That means he is receiving the goods. He is purchasing the goods. So that date of payment, on which day he is making the payment. Again, two dates will be applicable. Sometimes one will be given, other times maybe there are both the dates which are given. So you have to take earlier of them. First date is entered in the books of accounts, next is debited in the books of accounts, because रेसिपिएंट के अकाउंट में से डेबिट होगा, मतलब वो पे करेगा ना, पे करेगा, जो उसके अकाउंट में से पैसा निकलेगा मतलब डेबिट होगा. और थर्ड डेट है आपका डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. Please don't misunderstand, this is date of invoice here in the forward charge, but in the reverse charge it is date immediately after 30 days from the date of invoice. So suppose your invoice is on 1st June, so your third जो C वाला पॉइंट है ना यहाँ पे C वाला, तो उस हिसाब से हमारा लास्ट डेट क्या बैठेगा? 30 डेज के बाद मुझे निकालना है. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस था 1st June, तो अपन 30 उसमें ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 31st. पर जून में कभी 31st होता ही नहीं है, इसीलिए उसको 1st July ट्रीट करेंगे. इज इट क्लियर? वैसे आपको करना है. तीन डेट्स में से जो भी आपका अर्ली होगा वो आपका क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई. इन केस ABC के बीच में हमको डिटर्मिनेशन आई मीन हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तीनों में से कुछ भी, तो जो आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेट होगी ना आपकी डेट ऑफ पेमेंट वाली डेट, वो आप ले लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है, वो हमने कल ही एग्जाम्पल पढ़ के समझा था. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ रेसिडुअल केसेस. मैंने आपको पहले भी बताया था, रेसिडुअल केसेस में भी बहुत सारा कुछ है. देखो 4 पॉइंट्स है टोटल, 1 2 3 नहीं सॉरी 3 पॉइंट्स है
टोटल 3 पॉइंट्स आर देयर, सी 1 2 एंड 3. सो रेसिडुअल केसेस में सबसे पहला देखेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई. अब ये गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ना दोनों सेम है, जिसका सेक्शन है 12 सबसेक्शन 4 एंड 13 सबसेक्शन 4 हो जाएगा सर्विसेज के लिए. ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे. देखो यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है वो क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वाउचर्स. ये दोनों के लिए सेम है, तो मैं सर्विसेज के टाइम पे रिपीट नहीं करूंगी. आपको चाहिए तो एक बार हम ये स्लाइड वापस ओपन करके देख लेंगे, लेकिन याद रखो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वाउचर्स का वाला पॉइंट सेम है. ठीक है, क्या है ये, क्या बोलता है, अर्लीस्ट ऑफ टू थिंग, अर्लीस्ट ऑफ 2 डेट्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, टाइम ऑफ सप्लाई इज. देखो पहला 2 केसेस है, देखो दिख रहा है आपको A एंड B, देयर आर 2 केसेस. इफ द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, सॉरी रॉन्ग बोला मैंने, मैं फिर से रिपीट करती हूँ. 2 केसेस हैं A एंड B. अब अगर मैं यहाँ से रीड करती हूँ इफ से, ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ अभी, द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, ये मेरा आंसर है एक्चुअली, ये मेरा आंसर है. ठीक है, हमको क्या लेना है आंसर में, जिस दिन पे आपने वाउचर इशू किया था. कंपनी होती है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को वाउचर इशू करती है. देखो किस दिन पे एम्प्लॉय को वाउचर मिला था, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कंपनी का. और वाउचर सिर्फ कंपनी को नहीं मिलते, क्रेडिट कार्ड होल्डर को भी मिलते हैं, बहुत प्लेसेस पे आपको वाउचर्स मिलते हैं, है ना. तो अगर समझो आपको वाउचर मिला 1 जनवरी, तो यहाँ पे 1 जनवरी विल बी टेकन एज टाइम ऑफ सप्लाई. मैं आंसर बता रही हूँ ये, और ये आंसर कब एप्लीकेबल होगा, जब इफ द सप्लाई कैन बी आइडेंटिफाइड एट दैट पॉइंट. यानी कि बहुत सारे वाउचर्स ऐसे होते हैं जिसमें स्पेसिफिक पर्पस होते हैं. स्पेसिफिक पर्पस मतलब आपको वाउचर मिला स्पा करवाने के लिए, देखो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, हेयर कट करवाने के लिए, कंप्यूटर का कोई पार्ट खरीदने के लिए, सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, डिस्काउंट के लिए. देखो सिंगल पर्पस के लिए जब भी हम पहचान सकते हैं, जब भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सप्लाई जो है वो इस पर्पस के लिए है. मतलब आप स्पा का फ्री में स्कीम ले सकते हैं, हेयर कट का ले सकते हैं, कंप्यूटर खरीदने का ले सकते हैं, कोई एक सिंगल पर्पस पता चल जाए. कोई कोई वाउचर्स पता है कैसे होते हैं, आपके पास इस वाउचर में 500 है, आप इसको मूवी में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको शॉपिंग में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको सैलून में भी यूज कर सकते हैं. देखो वो सिंगल पर्पस नहीं होता है, आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं, है ना. कुछ कुछ वाउचर्स ऐसे होते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई वाउचर जिसका सिंगल पर्पस है और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एट व्हाट पॉइंट वी कैन यूज दिस सप्लाई वाउचर, तब आपको डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर को टाइम ऑफ सप्लाई के जैसा लेना पड़ेगा. मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा आपके लिए, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर. मतलब कंपनी ने आपको कब ये वाउचर इशू किया था, ये टाइम ऑफ सप्लाई तब से स्टार्ट होगा. ठीक है, आप रिडीम कब कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आपको 1 जनवरी को ये वाउचर मिला था, 1 साल के लिए वैलिड है, ऐसा बोल के मिला था. ठीक है ना, तो मैंने ना ये रिडीम किया 6 जून को, तो रिडम्पशन डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर. द डेट विच इज इम्पॉर्टेंट हियर इज डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जब इशू हुआ था 1 जनवरी. समझ आ रहा है सबको, आगे बढ़े, क्लियर है, बहुत इजी है. देखो इसमें तो कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो पूछिए, क्लियर कीजिए. है कोई डाउट है, इज इट क्लियर, कम ऑन क्विक गिव मी आंसर्स. ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बी पार्ट कब होगा इन, अब ना ये आंसर है मेरा, ये आंसर मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले मैं ये पढ़ रही हूँ. देखो इन ऑल अदर केसेस, इन ऑल अदर केसेस मतलब जो जो कॉमन पर्पस के लिए आपको वाउचर्स दिए जाते हैं कि आप शॉपर स्टॉप में ये वाउचर यूज कर सकते हैं. अब शॉपर स्टॉप में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ सिर्फ आप ड्रेस मटेरियल नहीं खरीद सकते हो, वहां पर तो आप बैग्स भी खरीद सकते हो, कॉस्मेटिक्स की चीजें भी मिलती हैं वो भी खरीद सकते हो. मतलब वेराइड आइटम्स आपको मिलते हैं वाउचर में, आप समझ रहे, कुछ भी खरीदिए.
यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ पे सिंगल पर्पस दिया हुआ है। आ रही है बात समझ में? तो जो ऑल अदर केसेस वाले वाउचर्स होते हैं ना, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये मेरा आंसर है, जो बी लिखा हुआ है ना वो मेरा आंसर है। द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर। रिडम्पशन मीन्स जब मैंने उसको वाउचर को यूज किया जिस दिन। रिडम्पशन मतलब जब मुझे पेमेंट करनी होती है तो मैं वाउचर यूज करती हूँ ना, तो पेमेंट के टाइम पे जब मैंने वाउचर यूज किया वो वाली डेट, जैसे मेरे पहले वाले एग्जाम्पल में थी 6 जून। वाउचर मुझे कंपनी ने 1 जून को दिया, 1 जनवरी को दिया था, पर मैंने रिडीम कब किया उसको, यूज कब किया पेमेंट के लिए? 6 जून। सो 6 जून विल बी द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। देखो कितना सिंपल है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, ये दोनों के लिए सेम है। ओके, नेक्स्ट अब आता है हमारा जो भी जितनी भी पॉइंट्स 12 सबसेक्शन 4, 12 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज, 4 में वाउचर्स और 12 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज में इंक्लूड नहीं होता है, उसे कहते हैं ऑल अदर केसेस। ऑल अदर केसेस, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता लगेगा? ये ना एक्चुअली आपके सिलेबस में इतना नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ। अभी क्योंकि हमने लिया ही है सेक्शन 12, तो मैंने सोचा 5 और 6 भी बता ही दूं, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछते, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। 12 सबसेक्शन 2 3 4, 2 3 4, ठीक है ना? चलो कोई नहीं, देख लेते एक बार फटाफट से, इजी है ये भी। 12 सबसेक्शन 5 एंड 12 सबसेक्शन 3, ये देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट कवर्ड इन एनी पॉइंट्स अबव, मतलब 2 3 4 में अगर कवर नहीं होता है तो उसे कहते हैं ऑल अदर केसेस। अच्छा, अब पहला, उसमें पहला केस क्या होगा? इन मतलब सॉरी, उसमें पहला क्या होगा? इन केस पीरियोडिक रिटर्न्स आर टू बी फाइल्ड। ऐसा कोई केस है जिसमें आप एवरी क्वार्टरली, पीरियोडिक मतलब टाइम टाइम से, और जीएसटी में टाइम क्या होता है? क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं ना बिजनेसमैन को, आपको पता होगा, ये तो जनरल बात है। बिजनेसमैन को क्वार्टरली, जीएसटी के लिए बिजनेसमैन को क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे पीरियोडिक की जगह पे मैं क्वार्टरली बोल रही हूँ, है वो पीरियोडिक ही, पर मैं आपको समझाने के लिए क्वार्टरली बोल रही हूँ। सो इन केस क्वार्टरली रिटर्न्स आर टू बी फाइल्ड, द डेट ऑन विच रिटर्न्स इज टू बी फाइल्ड। जब आप क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, ऐसा कोई बिजनेसमैन है जो क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर रहा है, मतलब रजिस्टर्ड है, तब तो रिटर्न्स फाइल करेगा ना, ठीक है ना? तो उस वो केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच रिटर्न्स इज टू बी फाइल्ड। आपने जिस दिन पे रिटर्न्स फाइल किया, ठीक है? अप्रैल मई जून एक क्वार्टर होता है, तो आप एक जून में जो क्वार्टर, जिस जून में आप अपना ये रिटर्न्स फाइल करते हो ना, जिस डेट पे, वो डेट आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बस यही एक ही पॉइंट है इसमें, ए में एक ही आंसर है। अब बी में आ जाओ, जिसमें आप क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल नहीं करते हो उसे कहते हैं ऑल अदर केसेस, एनी अदर केस। मतलब जिसमें आप क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल नहीं करते हो तो जिस दिन डेट, वो डेट जिस दिन आप टैक्स भरते हैं, वो डेट जिस दिन आप टैक्स भरते हैं, चाहे वो कॉम्पोजिट सप्लायर ही क्यों नहीं हो। कॉम्पोजिट सप्लायर कभी भी रिटर्न्स फाइल नहीं करता है, आपको पता होगा ये, लेकिन वो टैक्स तो भरता है ना। वो मैंने बताया था आपको, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट एंड अदर सर्विसेज, उनकी टैक्स भी होती है पर बहुत छोटी, मिनिमम 1%, 2%, 6%, 5%, आपको याद होगा। चलो ये हो गया आपका 12 सबसेक्शन 5 एंड 13 सबसेक्शन 5, दोनों के लिए सेम है। ये कौन सी पॉइंट्स थी? टाइम ऑफ सप्लाई इन ऑल अदर केसेस, मतलब जो 2 3 4 में कवर्ड नहीं है। पीरियोडिक रिटर्न्स फाइल करें तो वही दिन जिस दिन आपने रिटर्न्स फाइल किए हैं, और पीरियोडिक रिटर्न्स नहीं फाइल करें तो वो दिन जिस दिन आप टैक्स भरते हैं, वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब थर्ड लास्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, क्या पढ़ा हमने? ये सब हमने रेसिडुअल केसेस पढ़े हैं। लेक्चर में ही आप इतना अच्छे से ध्यान दो कि फटाफट से क्विक रिवीजन हो जाए आपकी जब आप रिवाइज करने बैठे, ठीक है? तो फर्स्ट हमारा पॉइंट था वाउचर्स का, सेकंड हमारा था ऑल अदर केसेस, और थर्ड हमारा पॉइंट है लेट पेमेंट फीस, 12 सबसेक्शन 6 एंड 13 सबसेक्शन 6।
क्या बोलता है वो, देयर मे बी एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ड्यू टू एडिशन ऑफ इंटरेस्ट, लेट पेमेंट फीस, पेनल्टीज फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन। अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट लग सकता है, लेट पेमेंट फीस लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है, तो उसकी वजह से सप्लाई का वैल्यू बढ़ जाएगा ना। समझो अब मैं आपसे गुड्स खरीदने आई हूँ, मैंने आपको बोला हर 3 महीने में मैं इंस्टॉलमेंट भरूंगी, तो 3 महीने का फोर्थ मंथ हो गया, थर्ड मंथ का फोर्थ हो गया, 1 महीने का इंटरेस्ट आप मुझसे चार्ज करेंगे, तो सप्लाई का वैल्यू बढ़ जाएगा ना। पहले वैल्यू था 3 लाख, अब आपने 10,000 का इंटरेस्ट मुझ पे चार्ज किया, तो वैल्यू क्या हो गई, 3,10,000, है ना। तो वैल्यू भी तो बढ़ गई, ये वही तो बोल रहा है, देयर में भी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ड्यू टू, क्यों बढ़ेगा वैल्यू, क्योंकि आपके ऊपर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी चार्ज हो रहे हैं। क्यों चार्ज हो रहा है, क्योंकि आप लेट पेमेंट कर रहे हैं, डिलेड पेमेंट। इन सच केसेस, ऐसे अगर कोई केस है तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, ध्यान से सुनो, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट, कौन सी डेट होगी, ऑन विच सप्लायर रिसीव्स एडिशन इन द वैल्यू। जब आपको इंटरेस्ट मिला, लेट फीस मिला, पेनल्टी मिलेगा, जब आप सामने वाले से ले रहे हो ना, जिस दिन ले रहे हैं उस दिन का डेट आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आपके लिए मतलब सप्लायर के लिए, ये सप्लायर की बात चल रही है, उसको मिलेगा ना पैसा, तो उसको मिलता है, ठीक है, फंड्स वो कलेक्ट करता है, ठीक है, रेसिपिएंट तो कैश पे करता है। तो अगर इंटरेस्ट मैंने आपको पे किया, समझो कौन सी डेट पे पे किया, 31 अगस्त को इंटरेस्ट पे किया, तो 31 अगस्त सप्लायर के लिए मतलब आपके लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। ये सर्विसेज के लिए भी सेम है, जहां जहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 एंड 13(5), 12(6) एंड 13(6), मतलब ये दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे भी रेसिडुअल केसेस में वाउचर्स का जो केस था 12(4) एंड 3(4) दिख रहा है आपको, मतलब ये वाउचर्स के बारे में बोल रहे हैं, 4 मतलब, तो ये दोनों के लिए सेम एप्लीकेबल होगा। ओके, यहाँ पे वाउचर का एक एग्जाम्पल भी हो सकता है, आई थिंक, ठीक है, देखते हैं कोई है कि नहीं एग्जाम्पल। चलो अभी ना ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला ए एंड बी, ये सेम लिखा हुआ है वाउचर्स के बारे में। देखिए, द फर्स्ट केस इज द वन वेयर सप्लायर इज आइडेंटिफाइबल। जब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंगल पर्पज है, तब उस दिन पे क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। मैंने यही तो बताया था यहाँ पर, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जब सिंगल पर्पज होगा, जब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तब डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर। देखिए सेकंड केस relates to the one where supply is not identifiable, then in this scenario date of redemption of the voucher would be taken as time of supply। बस जो वहां पर पॉइंट वाइज बोला है ना, उसी को स्टेटमेंट वाइज मैंने बता दिया। ये भी सेम है, यहाँ पे 12 सबसेक्शन 5, 13 सबसेक्शन 5 को पॉइंट वाइज बताया, ए एंड बी, यहाँ पे भी ऐसे ही बताया। देखो, इन केस ऑफ ऑल अदर इंस्टेंसेस टाइम ऑफ सप्लाई इज टेकन एज ड्यू डेट फॉर फाइलिंग पीरियोडिक रिटर्न्स, जब हम रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उसका ड्यू डेट, और आज जो बाकी के केसेस है पेमेंट ऑफ जीएसटी, यहाँ पे लिखा था पेमेंट ऑफ टैक्स, यहाँ पे लिखा था पेमेंट ऑफ टैक्स, यहाँ पे लिखा है पेमेंट ऑफ जीएसटी, बात तो एक ही है, ठीक है। ये सब बस एक अलग तरीके से दिया हुआ था, तो आपको भी कभी कभी शॉर्ट नोट आता है तो अलग अलग सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखना होता है ना जब, तो इसलिए मैंने स्लाइड में डाल दिया कि अच्छे से लिखा हुआ, तो आप भी उसको रीड करके अच्छे से आंसर को इलैबोरेट करने में आपको हेल्प हो जाएगा। ओके, नाउ सर्विसेज, ये हो गया आपका गुड्स तक। इसमें हमने ये जो रेसिडुअल केसेस थे ना, इसमें सर्विसेज भी हो गई। अब मैं सर्विसेज के लिए फिर से नहीं कराऊंगी 4, 5 एंड 6, ठीक है ना। अब हम कर रहे हैं सर्विसेज, प्रोविजन रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगेन इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे गुड्स को भी डिवाइड किया गया था, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर्स एंड ऑल अदर इंस्टेंसेस। हम सबसे पहले कर रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज।
द लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी, कोई भी जीएसटी बोलो, आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, विल अराइज एट द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब है ना यहाँ पे थोड़ा और टेक्निकल है, तो ना अच्छे से सुनना, नहीं तो नहीं समझेगा, ठीक है? मतलब समझ जाएगा, लेकिन थोड़ा टेक्निकल क्यों है, क्योंकि बैंकिंग के लिए अलग है और बाकी सारी जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए अलग है, ठीक है? ध्यान से सुनो। सब तीन तीन डेट्स हैं आपके पास, तीन। जैसे पहले कैसी थी गुड्स में, कोई बताएगा गुड्स की ये तीनों सेम थी क्या? अगर आपका ध्यान है ना तो गुड्स के वाले स्लाइड पे जाती हूँ, ये तीनों डेट सेम थी। जब तक किसी को याद आ रहा है तो बता सकता है कोई? यस मैम। हाँ बताइए। डेट ऑफ इनवॉइस, हम्म डेट डेट ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और थर्ड। रिसिप्ट्स ऑफ वेरी पेमेंट। गुड, वेरी गुड। ये देखो ये सेम है जो आपने बताया ना गुड्स के लिए फॉरवर्ड चार्ज, डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में दो डेट्स होती हैं, एग्जैक्टली सर्विसेज में है, एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है ना, ड्यू डेट ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस, इसमें 4 पॉइंट्स थी, अगर आपको याद है तो। ये 4 पॉइंट्स है ना, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है। इफ मूवमेंट ऑफ गुड्स तो डेट ऑफ रिमूवल, इफ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स देन डिलीवरी, जब आप कस्टमर को डिलीवरी करके दे रहे हैं, जब उसके पास पहुंच रहा है। कंटिन्यूअस सप्लाई है तो इन दोनों में से जो अर्ली है, अप्रूवल है तो इन दोनों में से जो ये क्या हो जाएगा, अर्ली वाला। तो ये जो ड्यू डेट है ना, बस ये अलग है, बाकी सेम है। सर्विसेज में बाकी सेम है। अब देखते हैं क्या है सर्विसेज में, आ जाइए यहाँ पर। सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज, पहला पॉइंट क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ये तो बिल्कुल सेम है गुड्स के जैसा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़िए। द डेट ऑन विच सप्लायर इशूज द इनवॉइस, करेक्ट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और मेरी बहुत बड़ी कंपनी है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने मेरी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो सर्विसेज होती हैं, ऑडिट की, अकाउंट मेंटेन करने की, अकाउंट्स को वेरीफाई करने की, बहुत सारी सर्विसेज होती है, लीगल मैटर्स में हेल्प करने की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। आपने मुझे सर्विसेज दी, मैंने आपको पेमेंट दिया। जब आप मुझे सर्विस दे रहे हो तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई भी तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है? टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं अभी हम। आप आप कौन हो, सर्विस दे रहे हो मुझे, आप सप्लायर हो। तो अभी आपने मुझसे क्या चार्ज किया, फीस चार्ज किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या चार्ज करता है, सैलरी नहीं चार्ज करते हैं। आप एम्प्लॉय थोड़ी हो मेरे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी के एक्सपर्ट हो। तो एक्सपर्ट्स फीस चार्ज करते हैं, प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, वो डॉक्टर जैसे होता है, फीस चार्ज करते हैं। तो अब आपने मुझसे फीस चार्ज की, आपकी इनकम क्या है, फीस। अब आप अपनी अपने जो सर्विस चार्ज है उसमें से जीएसटी भरेंगे ना। तो जीएसटी भरने से पहले टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे आप सप्लायर हो सर्विसेज के, आप मुझे सर्विसेज दे रहे हो, मैं रेसिपिएंट, आप सप्लायर। तो मैं आपकी बात कर रही हूँ अभी, ठीक है ना? क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज के अंडर में सप्लायर टैक्स भरता है। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने मुझे सर्विस दिया और मुझसे फीस चार्ज किया। अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आपने जीएसटी भरना है। जो जीएसटी भरता है उसी के लिए टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाता है, ठीक है? तो अब आप अपना टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे, 3 डेट्स को देखेंगे। कौन सी 3 डेट्स, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने मुझे इनवॉइस इशू किया। कौन सा इनवॉइस, सर्विसेज दी ना आपने मुझे, तो सर्विस का जो रेट लगाएंगे आप मेरे ऊपर, जीएसटी लगाएंगे मेरे ऊपर, तो उसका बिल तो बना कर देंगे ना आप मुझे, मेरी कंपनी को बिल भी तो चाहिए, ठीक है? तो आपने मुझे उस दिन का बिल बना कर दिया, ठीक है? तो जिस दिन आपने मुझे वो इनवॉइस बनाकर दिया, वो डेट। सेकेंड, ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। अब ये ध्यान देना है, यहाँ पे ना स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। आई मीन even though it is easy, I don't understand why students get confused. It is very easy, एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत easy है। ड्यू डेट टू इशू द इनवॉइस, द लास्ट ड्यू डेट का मतलब ये होता है लास्ट डेट ऑन विच सप्लायर, मतलब आप मुझे इशू करेंगे, इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे ना ये मैं ये चीज नहीं बोल रही हूँ कि जिस दिन आपने मुझे इनवॉइस इशू किया उसके 30 days के बाद वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो पढ़ा था, वो नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स है ना मिक्स कर देते हैं। एक मिनट रुको, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये
ये वाला गुड्स वाला रिवर्स चार्ज है ना, जो गुड्स वाला, उसमें हमने थर्ड पॉइंट क्या की थी, डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ये बिल्कुल अलग चीज है। इसमें क्या है, आपने जिस दिन इश्यू किया ना इनवॉइस, उसके 30 डेज के बाद। ओके, अब ये जो बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, द लास्ट डेट ऑन विच सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी कि जिस दिन आपने मुझे सर्विसेज दी, सपोज आपने मुझे सर्विसेज दी मंथ ऑफ मार्च, 25 मार्च, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कौन सी डेट थी, 25 मार्च। मैं सप्लाई ऑफ सर्विस बोल रही हूँ, मैं इशू ऑफ इनवॉइस नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आपने मुझे सर्विसेज कब दी थी, 25 मार्च। तो 25 मार्च से लेकर 30 डेज के अंदर तक आपको मुझे इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा मतलब रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड वर्ड हो गया ना, तो कंपलसरी हो जाता है। तो वो लास्ट डे 25 मार्च से लेकर 30 डेज कितने होते हैं, कोई बताएगा? मार्च में 31 भी होते हैं, काउंट करके बताना। 25 मार्च से लेकर 30 डेज कौन सी डेट रुकती है? 22 अप्रैल 20, फिर से बोलो। 22 अप्रैल 22 नहीं बैठेगा, मेरे ख्याल से 23 बैठेगा। मैम 31 डेज होते ना मैम। हाँ हाँ, मार्च में 31 होते हैं ना, तो 27 से 31 तक 5 डेज हो गए ना, 27, 28, 29, 30, 31, 5 डेज हो गए। तो 30 में से 25 डेज तो गया, बाकी 25 डेज। तो फर्स्ट मार्च से 25 डेज मतलब 24 हो गया ना, 24 हो रहा है ना, बराबर है, 22 नहीं। ठीक है, चलो। तो इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज का डेट देखना है यहाँ पर। पहले सप्लाई ऑफ सर्विस किस दिन पे किया था, उसके उसके तुरंत 30 डेज, लास्ट 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब ये जो चीज है ना, वो अदर्स के लिए, अदर्स अगर बैंकिंग होगा तो ये देखो, मैंने आपको बोला ना बैंकिंग के लिए अलग होगा। इन केस ऑफ बैंकिंग द इनवॉइस हैज टू बी इशूड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर यही चीज बैंकिंग कंपनी की होगी, तो अगर आप बैंकिंग कंपनी का कोई सर्विस, बैंकिंग कंपनी की कोई सर्विस इन्वॉल्व है तो 45 डेज। और अगर और कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, रिलायंस कंपनी जैसे टाटा कंपनी, या फिर इंश्योरेंस कंपनी, कोई और कंपनी है, बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो उनके लिए कितना टाइम अवेलेबल है, 30 डेज। इज इट क्लियर? तो मैं आगे बढ़ूं, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो 30 वाला पॉइंट है ना, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बिल्कुल अलग चीज है। ये सप्लाई ऑफ सर्विस का जो दिन होगा ना, उसके 30 डेज में आपको इनवॉइस इशू करना है, ये वो दिन है। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ द इशू ऑफ इनवॉइस। और अगर बैंकिंग सेक्टर है तो 45 डेज काउंट करना है। ठीक है, और फिर लास्ट है आपका रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ये तो फिर से सेम, अर्लीस्ट ऑफ 2 डेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पे जो और वर्ड है ना, वो इम्पोर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ आपके लिए। ठीक है, और द डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट। हिज मतलब सप्लायर के बैंक अकाउंट में कब वो पैसा पहुंचेगा, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो दोनों डेट्स को कंपेयर करके हम अर्लियर वाला निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रिसिप्ट। तो तीनों तीनों में से सिर्फ ये ड्यू डेट ही अलग है, बाकी आपका सब सेम है, डेट ऑफ इनवॉइस, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। जो ड्यू डेट है वो नॉर्मल 30 है और बैंकिंग के लिए 45 है। ओके, इतना समझा? चलो जल्दी आंसर करो तो मैं आगे बढ़ूं। कम ऑन, गिव मी आंसर्स। यस मैम। यस, क्लियर? यस मैम। अब देखो यहाँ पे वही चीज है ना, सिर्फ स्टेटमेंट वाइज बताइए, सेम चीजें स्टेटमेंट वाइज बताइए। ओके, अब ये देखो चार्ट बताइए। ये देखो बहुत अच्छा चार्ट है, इसमें ना बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखो 13 सबसेक्शन 2 मतलब सर्विसेज रिलेटेड टू फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज 2 मतलब फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा, इनवॉइस इशूड लेस देन 30 डेज फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर लेस देन 30 डेज है मतलब विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज अगर आप इशू करते हो इनवॉइस, अगर यस, तो अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। और अगर आप 30 डेज के अंदर इशू नहीं करते हैं तो क्या होगा,
तो थोड़ा अलग हो जाएगा। क्या? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज और डेट ऑन विच सप्लाई रिसीव्स द पेमेंट, मतलब डेट ऑफ रिसिप्ट जो हमने पढ़ा था। बस आपके लिए ये नया है, ये देखो ये नया है। अगर 30 डेज के अंदर इशू नहीं करते हो इनवॉइस, क्योंकि लास्ट डेट तो 30 थी ना, तो अगर 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं करते तो क्या हो जाएगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज। प्रोविजन मतलब आपने कब से सर्विसेज का प्रोविजन स्टार्ट किया था, मतलब कब से सोचा था सर्विसेज हम देंगे, वो डेट दी जाएगी। डोंट वरी, क्वेश्चन में सब कुछ अवेलेबल होगा, कुछ ढूंढना नहीं होता है इसमें। सबसे पॉजिटिव पॉइंट पता है क्या होती है टाइम ऑफ सप्लाई की? सब कुछ अवेलेबल होता है, आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज ये याद रखनी होती है, ये चीजें, ये जो डेट्स है ना वो याद रखनी है। फिर उसमें से हर जगह रूल एप्लीकेबल एक ही है, विच एवर इज अर्लियर। कहीं पे भी रूल ऐसा नहीं है विच एवर इज लेटर। टाइम ऑफ सप्लाई इतना इजी चैप्टर है ना कि सारी डेट्स दी जाएंगी, आपको सिर्फ रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो जब 30 डेज के अंदर इशू नहीं होगा तो रूल क्या होगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट। यहाँ पर अगर 30 डेज के अंदर इशू किया है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट। Okay, this is for others, and if it is for banking it will be 45 days. Rule will be same. If it is within 45 days, yes, then date of issue of invoice or a date of receipt. If it is not within 45 days, then date of provision of services or a date of receipt. Very simple. Okay, next. अब ये ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सर्विसेज से रिलेटेड हैं, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। द सप्लाई ऑफ सर्विसेज शल, देखो आपके ना इतने सिलेबस में इतना वास्ट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको नॉलेज मिलेगा ना इससे रिलेटेड। एक सेकेंड। Yes. So first point is supply of services shall deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or the payment, as the case may be. मतलब आपका जो सप्लाई ऑफ सर्विस है ना वो उतना ही होना चाहिए जितना कि इनवॉइस में बताया गया है। इनवॉइस आप 3 लाख का बना रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो 2 लाख की, तो चलेगी क्या? नहीं, उतना ही इक्वल होना चाहिए ना, जितना आप पेमेंट चार्ज कर रहे हो उतनी की सर्विस भी दे रहे हो, ठीक है। एज द केस में भी, फॉर एग्जाम्पल भी बताया, मिस्टर उद्धव रिसीव्स एन एडवांस ऑफ ₹25,000 ऑन 30 जून फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वर्थ ₹35,000। आपको आपने प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब आगे चल के आप मुझे सर्विसेज कितनी देने वाले हैं? 35,000 की, और आपने मुझसे एडवांस कितना लिया है? उधर रिसीव्स एन एडवांस ऑफ ₹25,000 टू बी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कितनी है? प्रोविजन मतलब जो आप आगे चल के आप मुझे फ्यूचर में सर्विसेज देने वाले हैं। टू बी सप्लाइड इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपने मुझसे एडवांस कभी लिया? जून। और आप मुझे सर्विसेज कब देने वाले हैं? अगस्त। तभी तो प्रोविजन ऑफ सर्विस बोलते हैं ना। प्रोविजन मतलब क्या? जो फ्यूचर में होते हैं। देन ऐसे केस में देन it is deemed that firm Mr. Uday has made a supply of 25,000 on 30 June and tax liability on 25,000 is to be discharged on 20 July. मतलब आपको अब तक पेमेंट कितना मिला है? आप सपोज आप मिस्टर उद्धव हो, ठीक है, आप मुझे सर्विसेज देने वाले हो अगस्त में, पर जून में ही आपने मुझसे एडवांस ले लिया था। कितना? 25,000। तो आप देखो पेमेंट तो आपको मिल गई ना 25,000, तो पेमेंट मिल गई यानी कि आपको उसके ऊपर टैक्स पे करनी है। किस दिन पेमेंट मिली? 30 जून। आपको मैंने पहले ही सिखाया था ये फर्स्ट स्लाइड में कि जिस दिन पेमेंट आपको मिलेगी ना, टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन होगा ना आपका, उसके नेक्स्ट मंथ की 20 डेट को आपको लाइबिलिटी गवर्नमेंट तक रेमिट करनी पड़ती है, टैक्स लाइबिलिटी। अब आपने 25,000 ऑन किए कब? 30 जून। तो आपने 30 जून इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा आपके लिए? 30 जून। एंड उस हिसाब से नेक्स्ट मंथ क्या होगा? जुलाई। नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा? जुलाई। और 20 एवरी 20 डेट को आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है।
Yes, Himanshu, tell me. मैम ये लाइन एक्सप्लेन करो ना, डीम टू हैव बीन मेड टू द सुनो, एक्सटेंट इट इज नहीं कवर्ड। नहीं, सुनो सुनो, मैं आपको ना सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, इसको एक मिनट छोड़िए। टीम टू हैव बीन मेड मतलब ऐसा माना जाएगा कि आपने क्योंकि एडवांस ले लिया था, तो हम यही समझेंगे, गवर्नमेंट बोलती है हम यही समझेंगे कि आपने सप्लाई भी उसी दिन किया। हैज मेड अ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज ऑफ ₹20,000 25,000 ऑन 30 जून। देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक मिनट, कॉन्सेप्ट क्या है, आपने एडवांस लिया, सर्विसेज बाद में दे रहे हैं। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का मतलब यही तो होता है कि फ्यूचर में जो जो डेट डिसाइड करिए ना आपने, उस दिन पे हम आपको सर्विसेज देंगे, लेकिन अभी मुझे एडवांस चाहिए। तो एडवांस वाले केस में ये बोला गया है कि हम मानेंगे कि जिस दिन आपने एडवांस लिया ना उसी दिन आपने सर्विसेज दे दी है, तो मतलब टाइम ऑफ सप्लाई भी एडवांस वाला ही लिया जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। डीम्ड का मतलब ही क्या होता है, आप कभी गूगल सर्च करेंगे ना, डीम्ड का मतलब होता है अज्यूम करना, है नहीं पर अज्यूम किया जाएगा। ठीक है, तो डीम्ड का मतलब है आपने जिस दिन एडवांस लिया ना उसी दिन समझा जाएगा कि आपने सप्लाई भी कर दिया। किस दिन आपने एडवांस लिया था? 30 जून। तो सप्लाई भी किस दिन किया? डेट ऑफ सप्लाई 30 जून। तो डेट ऑफ सप्लाई को ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि आपको पेमेंट भी मिल गई, आपने सप्लाई भी कर देना है, करोगे आप फ्यूचर में, पर पेमेंट ले ली है तो सप्लाई तो करेंगे ना आप सर्विसेज। ठीक है, तो 30 जून विल बी टारगेटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई, नॉट द मंथ ऑफ ऑगस्ट। प्लीज नोट दिस। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ? अब क्लियर है हिमांशु? तो 30 जून अगर आपने, यस मैम। हाँ, अगर 30 जून आपने समझ लिया कि सप्लाई हुआ तो ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। और टाइम ऑफ सप्लाई के ठीक नेक्स्ट मंथ में 20 डेट को आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है, मतलब गवर्नमेंट को आपको 20 डेट तक पे करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ। अब 30 जून है तो जुलाई में आ जाओ, जुलाई की कौन सी डेट? 20। 20 हमेशा फिक्स है, हाँ, 20 डेट इज फिक्स्ड। लास्ट डेट उसके पहले पे कर सकते हो, उसके बाद नहीं चलेगा, पेनल्टी लगेगा। 20 डेट तक आपके पास टाइम है। और गवर्नमेंट को आप 25,000 नहीं दोगे, टैक्स लगती है 25,000 के ऊपर। टैक्स लाइबिलिटी ऑन ऑन ₹25,000, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ₹25,000 नहीं लिखा। 25,000 तो आपकी इनकम है, आपकी सर्विस चार्जेस हैं एडवांस। ठीक है, 25,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा, 5%, 12%, सर्विसेज के हिसाब से होती है, अलग अलग सर्विस पे अलग अलग टैक्स का रेट होता है। ये था फर्स्ट पार्ट, मतलब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं सर्विसेज से रिलेटेड। अब हम सेकंड देख रहे हैं। सेकंड में फिर से 4 पॉइंट्स हैं। डेट, ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। देखो जब हम सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, तो कभी कभी ना कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइड होता है। एग्जाम्पल, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको 1 साल की सर्विसेज देगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या ये आइडेंटिफाई हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, विथ डेट आइडेंटिफाई हो सकता है। 1 मार्च से ये सर्विस शुरू हो रही है, 31 मार्च 2020 को ये सर्विस खत्म हो जाएगी, ये तो बिल्कुल आइडेंटिफाई हो सकता है। ठीक है, हाँ, आई विल गिव यू ब्रेक, डोंट वरी, सिर्फ ये हो जाने दो, फिर मैं आपको ब्रेक देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट का जो क्या कहते हैं, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आइडेंटिफाई हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो द इनवॉइस विल बी इशूड बिफोर और आफ्टर द पेमेंट इज टू बी मेड बाय द रेसिपिएंट। बट ये याद रखना, इनवॉइस इशू करने की डेट क्या है? नॉर्मल कंपनीज के लिए 30, बैंकिंग कंपनीज के लिए 45 डेज के अंदर। ठीक है, ये तो हमने पहले भी चीज पढ़ी थी, ये फिर से इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इंक्लूड कर दिए। किसके लिए? अगर आपका कॉन्टिन्यूस सप्लाई होगा तो। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है ना कि जब तक काम चल रहा है तब तक, प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, अलग अलग जगह पे आपने प्रोजेक्ट ओपन किए, तो जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म नहीं होगा, है ना। कभी कभी हम कैन नॉट आइडेंटिफाई, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट, तो उस केस में भी सेम। देखो, द इनवॉइस शैल बी इशूड
बिफोर, यहाँ पे क्या था, बिफोर और आफ्टर, यहाँ पे भी सेम देखो, बिफोर और आफ्टर ईच टाइम when the supplier receives the payment, but remember it should be 30 or 45 days from the receipt of payment. देखो थर्ड वन, पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट। अब है ना, कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट का ऐसे होता है, जब आप इवेंट कंप्लीट करोगे ना तब आपको पेमेंट मिलेगी। बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं, अब जैसे इवेंट मैनेजर्स होते हैं, कोई आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो जब तक इवेंट खत्म नहीं होता ना तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और आफ्टर एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, बट इसमें भी वही रूल है, 30 और 45 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट। मतलब जिस दिन आपका इवेंट कंप्लीट होगा उसके 30 डेज विद इन, और अगर बैंकिंग होगा तो 40 डेज के विद इन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सर्विस। बहुत बार ऐसा होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने से पहले ही आपकी जो सर्विसेज है ना वो स्टॉप हो जाती है। स्टॉप, सीजेस मतलब स्टॉप। देखो बहुत बार है ना ऐसे होता है, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ना 4 एक्सपर्ट्स लगते हैं, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक प्रोडक्शन एक्सपर्ट, है ना। तो समझो अभी ये 3-4 एक्सपर्ट्स हैं जो मिलके आपको सर्विसेज दे रहे हैं। अब मेरी जो सर्विस थी ना, मैं प्रोडक्शन एक्सपर्ट हूँ, तो मेरी जो सर्विस है ना वो 3 महीने की है, लेकिन अभी तक सप्लाई खत्म नहीं हुआ, कंप्लीशन ऑफ सप्लाई नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई से पहले मेरी सर्विसेज खत्म हो जाएंगी। प्रोडक्शन वाले की सर्विसेज पहले खत्म हो गई और मार्केटिंग वाले की बाद में शुरू होगी, कभी कभी ऐसा होता है। उस केस में द इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन सप्लाई सीजेस। कब आपकी सप्लाई खत्म हो रही, कौन सी डेट पे, तो मेरी कौन सी डेट पे सप्लाई खत्म हुई, समझो 5 सितंबर। ठीक है, अभी कभी सप्लाई खत्म नहीं हुआ, अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, लेकिन मेरी सर्विस खत्म हो गई 5 सितंबर को, तो इनवॉइस उस दिन आपको इशू करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सच इनवॉइस, ऐसा जो इनवॉइस है जो 5 सितंबर को इशू किया जाएगा, शैल बी इशू टू द एक्सटेंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बिफोर स्टॉपिंग। और वो उसका इनवॉइस का बिल कितने का बनेगा, उतने का बनेगा जितने की आपने मुझे स्टॉप होने से पहले की सर्विसेज दे रखी हुई है। आपने मुझे सर्विसेज दे रखी हुई है 30,000 की, तो इनवॉइस बनेगा 30,000 का। आपने सर्विसेज दे रखी हुई 50,000 की, तो इनवॉइस बनेगा 50,000। ठीक है, जनरल रूल्स बताए हैं इन्होंने, बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब ये था ए पॉइंट, बी, एंड ये सी एंड डी। अब सी में क्या है देखो, ऑप्शनल टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, ये ना चीज़ न्यू आई हुई है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि देखो आएगा तो नहीं एग्जाम में, बट स्टिल आप नॉलेज है तो अब ले लीजिए, मिल रहा है तो। इफ द अमाउंट अप टू 1,000 in excess of invoice amount is received, then supplier may take time of supply as the date of invoice issued for such excess or advance received। यानी कि ऑप्शनल होता है यहाँ, ये कंपल्सरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है। अब ये चीज़ है क्या, अब सपोज मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की थी 30,000 की, और अब जो इनवॉइस बना था ना वो 30,000 का था। कभी कभी क्या होता है, हम ना सर्विसेज ज़्यादा दे देते हैं, तो जो बिल बनाते हैं हम लोग वो 30,000 का बनाया था पहले, तो अब तो आप मुझे पेमेंट ज़्यादा करेंगी। बिल में दिखाया 30, लेकिन आप मुझे पेमेंट कितना कर रहे हैं, 32,000। ध्यान से सुनेंगे हाँ, आपने मैंने बिल में अमाउंट कितना दिखाया, मेरी सर्विसेज का 30 जो मैं आपको दे रही हूँ, तो आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट कितना कर रहे हैं, 32, क्योंकि मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे दी। अब बिल के हिसाब से, इनवॉइस मतलब बिल, इनवॉइस के हिसाब से अगर आपको अप टू 1,000 से ज्यादा मिल रहा है, 1,000 तक ज्यादा मिल रहा है ना, तो आपके पास ऑप्शन, क्या ऑप्शन है, आप मतलब सप्लाई, जो सप्लाई कर रहे हैं ना सर्विसेज वो। अब मेरे पास ऑप्शन क्या होगा कि टाइम ऑफ सप्लाई में वो ले सकती हूँ जिस दिन मुझे ये एडवांस मिला, जिस दिन मुझे ये एक्सेस अमाउंट मिला। कब मिला ये एक्सेस अमाउंट, समझो 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को मेरे पास ऑप्शन है कि मैं टाइम ऑफ सप्लाई ले सकती हूँ 5 सितंबर, ना कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्ली। वो ऑप्शन नहीं लगेगा, फिर एक ही ऑप्शन लगेगा।
मतलब आपके पास ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है ये। और ये सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा, जब आपको बिल से ऊपर अमाउंट मिलेगा। कितना? अप टू 1000। अच्छा, मेरे केस में कितना था? 32,000, मतलब 2000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देखो मैं एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, इससे ज्यादा मैं कैसे सिंपल क्लियर करूं मुझे पता नहीं। अब मेरे वाले एग्जाम्पल में क्या था, आपने मुझे कितना पे किया? 32,000। तो बिल कितना था? 30,000। आपने मुझे कितना एक्स्ट्रा पे किया? 2000। तब ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होता है, तब मुझे तो वही ऑप्शन एप्लीकेबल, वही चीज है, ये वाली, ये वाले तीन, ये वाले रूल्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है। अब अगर आपने मुझे 31,000 दिया, तब हाँ मेरे पास ऑप्शन है। जिस दिन आपने मुझे ये एक्स्ट्रा पेमेंट दिया ना, एक्सेस ज्यादा, उस दिन, जिस दिन मुझे मिला है, उसी दिन को मैं टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट कर सकती हूँ। ये ऑप्शनल है। ओके, लास्ट, आई होप ये लास्ट पॉइंट है। हाँ, इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड, अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, एंड द डेट ऑफ पेमेंट और द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज आर ऑल्सो नॉट एसर्टेनेबल। अब ना डेट ऑफ पेमेंट पता लग रही है, ये डेट ऑफ पेमेंट भी पता नहीं लग रही है, और डेट ऑफ इशू, आपने इनवॉइस अभी तक इशू ही नहीं किया, आपने इनवॉइस अभी तक इशू ही नहीं किया, तो क्या करेंगे? ध्यान से सुनो। देन द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई लेंगे? जब आपने अपने बुक्स में, मतलब रेसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया है कि मुझे इस दिन पे ये सर्विसेज मिली। पेमेंट की बात नहीं कर रही हूं मैं, यहाँ पे पेमेंट की बात नहीं चल रही है। देखो इसके सम्स नहीं आते, बट स्टिल सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने ये पॉइंट्स डाली हैं चारों, तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। टाइम ऑफ सप्लाई shall be the date on which recipient shows the receipt of services, not the receipt of amount, क्योंकि रेसिपिएंट तो पे करता है ना। यहाँ पे रेसिपिएंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या दिखा रहा है? जिस दिन पे मुझे सर्विसेज मिल रही हैं, वो दिन टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट होगा। ठीक है, आपके लिए। अब एग्जाम्पल है, सर्विसेज का एग्जाम्पल है, हाँ, ये ध्यान से देखना। मिस्टर सचिन प्रोवाइड सर्विसेज, मिस्टर सचिन कौन है? सप्लायर है, वो सर्विसेज दे रहा है, वर्थ ₹20,000 टू मिस्टर राहुल ऑन 1st January। द इनवॉइस वॉज इशूड, देखो सबसे पहला पॉइंट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 20 January, and the payment for the same was received on 1st February। डेट ऑफ पेमेंट है ये, डेट ऑफ पेमेंट 1st February। मैंने आपको बोला ना बहुत बार डेट ऑफ पेमेंट एक ही दी होती है, देखो इस केस में एक ही है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट वो वाला केस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, कब आपको रिसीव हुई पेमेंट, क्रेडिट कभी हुई आपके अकाउंट में? 1st February, तो आप लिखोगे 1st February। चलो, दो तो डेट्स आपको मिल गई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। अभी बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, ये देखो टोटल 3 डेट्स होती हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 20 जनवरी है, देखो यहाँ पे नीचे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 20 जनवरी, डेट ऑफ पेमेंट 1st February। और एक डेट होती है, कौन सी डेट होती है, कोई याद दिलाएगा मुझे? बीच में एक और डेट होती थी ना, वो कौन सी होती थी? ड्यू डेट ऑफ, याद आया? इशू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब ये बैंकिंग कंपनी तो नहीं है, तो ये नॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो 30 डेज। अब आपने सप्लाई कभी की सर्विसेज? 1st January। आपने सर्विसेज कभी सप्लाई की? 1st January। तो 1st January का 30 डेज कितना होता है? 31st January। 1 में 30 ऐड कीजिए, 31st January। जनवरी में 31st डेट होती है? हाँ होती है, मतलब ये 31st January, ये पैराग्राफ पढ़ोगे ना तब समझेगा। So we need to first check if the invoice was issued within the prescribed time. The prescribed time is 30 days from the date of supply, that is 31st January। आपने सप्लाई कब की थी सर्विसेज? 1st January। उसके 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। 30 डेज के अंदर मतलब 31st January। और वाकई में आपने 31st January के अंदर इनवॉइस इशू किया है। इनवॉइस कभी इशू किया? 20 January।
ड्यू डेट क्या है? 31 जनवरी। अभी ध्यान से देखो, हाँ, ये जो चार्ट है ना, ये आपको फॉलो करना है, ये वाला। 30 डेज के अंदर, विद इन, ये साइन दिख रही है आपको? 30 डेज के अंदर आपने अगर इनवॉइस इशू किया तो यस, तो फिर ये डेट्स एप्लीकेबल होंगी। अगर नो, तो फिर ये डेट्स एप्लीकेबल होंगी। अब वाला सम देखिए, एग्जाम्पल ऐसा आता है, हाँ, क्वेश्चन में, यहां तक क्वेश्चन आएगा, ये देखो, ये आपका क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स के लिए आता है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले नोट लिखना है। फर्स्ट वी नीड टू रिकॉग्नाइज, इज द इनवॉइस इशूड विद इन 30 days? 30 days from the date of supply is 31st January. Yes, the invoice is issued within 30 days, that is 20 January. आपको ये नोट लिखना जरूरी है। ये नोट इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको। Invoice is issued within 30 days, then there are 2 dates to be applicable. 2 dates कौन सी देखो? Date of issue of invoice 20 January, date of payment 1st February. Now earliest of these 2 dates, कौन सा दिन पहले आता है बताइए? Issue of invoice 20 January, पेमेंट 1st February. तो आप बताएंगे कौन सी डेट पहले आ रही है? ये डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है, हाँ, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ओके, कब आपको पैसा मिला? 1st February। तो दोनों में से पहले कौन सा आ रहा है? 20 जनवरी। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई आपके लिए क्या हो जाएगा? 20 जनवरी। आपके लिए मतलब मिस्टर सचिन जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस, इज इट क्लियर? आप आंसर दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं, ब्रेक के लिए बात करूं, आप आंसर Yes, करूं? ma'am. ओके, आगे कंटिन्यू करेंगे। आप 5 मिनट्स ब्रेक ले लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। इज दैट ओके? ब्रेक चाहिए ना कि कंटिन्यू करें? ओके, चलो कोई नहीं, ब्रेक ले लो। तो चालू रहने देते हैं हम, है ना, मीटिंग चालू रहने देते हैं। 5 मिनट्स की ब्रेक ले लीजिए। ओके, मीटिंग से लेफ्ट नहीं करना।
Here in the chat box, Rinku has asked it out. If time of supply is 10th June, then tax payment due date is 30 June or 20 July. See, we don't have to add 20 days. No. Rinku, are you there, beta? Rinku, are you there? We have Rinku in the class. Okay, anyways, I'll explain. Anyways, she can listen to the recordings also. So if we have, suppose if the supply or time of supply is 10th June, then you directly have to come to the next month, July, and 20 date is the last due date. Okay, so the answer will be 20 July, not 30 June. You don't have to add 20 days. Okay, next month 20 date is the last due date. Okay, that was the doubt that Rinku asked me. I just saw in that chat box. We have a second example also. Now this was the first example that we saw. This is second one. Mr. A provides services worth rupees 20,000 to Mr. B. Now who provides the services? Mr. A. That means he is a supplier. When does he provide the services? Supply the services 1st January. Means the due date of the services will be 31st January. Sorry, the due date of issue of invoice will be 31st January. ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? लास्ट डेट. आपको इनवॉइस इशू कब तक करना पड़ेगा? 31st जनवरी तक. लेकिन आप इनवॉइस एक्चुअली में कब तक इशू कर रहे हैं? 20 जनवरी को. मतलब 31st जनवरी के अंदर इशू कर रहे हैं. इफ यस, देन देयर आर टू डेट्स. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज 20 जनवरी एंड डेट ऑफ पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 1st फरवरी. ठीक है, तो दोनों में से अर्ली कौन सा हो जाएगा? 20 जनवरी. ओके. टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अब हमने पहले भी पढ़ा है रिवर्स चार्ज, तब गुड्स का था, अब सर्विसेज का है. सर्विसेज में क्या है देखिए, 13 सबसेक्शन 3 कहता है टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल बी अर्लीएस्ट ऑफ टू थिंग्स, टू डेट्स. कौन सी टू डेट्स? डेट ऑफ पेमेंट. अब डेट ऑफ पेमेंट में फिर से दो चीजें आती हैं. डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ पेमेंट डेबिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सॉरी इन बैंक अकाउंट. earliest of two. Okay, so that will be selected as date of payment and it will be compared to. अब फिर से वही चीज है, ध्यान दो. जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया ना, उसके 60 डेज के बाद गुड्स में कितना था? ये 60 का, 60 की जगह पे क्या था गुड्स का? गुड्स में ये पॉइंट क्या थी? 60 की जगह पे क्या था? कम ऑन, अनम्यूट करके आंसर दो. मैम क्वेश्चन रिपीट करो. ये देखो, ये से हाँ, सुप्रिया ने आंसर दे दिया 30 डेज. मैंने क्वेश्चन क्या बोला? ये जो डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, ये सेम स्टेटमेंट था गुड्स में, लेकिन उसमें डेज कितने थे? 30. सुप्रिया हैज गिवन मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. 30 डेज थे ना गुड्स में, और गुड्स में 3 डेट्स थी. आप एक मिनट रिवर्स चार्ज देखिए गुड्स का. देखिए यहाँ पे 3 डेट्स थी ना, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. और तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होता सर्विसेज में, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स है, इसीलिए ये सर्विसेज में एप्लीकेबल नहीं होता है. तो सर्विसेज के लिए कौन से दो डेट्स एप्लीकेबल होते हैं? ये बी एंड सी. लेकिन सी में 30 डेज का एप्लीकेबिलिटी 60 डेज हो जाता है सर्विसेज के केस में. ओके, सर्विसेज के केस में 60 डेज हो जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड.
So here we come back to services. Services ये रहा, ठीक है. दो डेट्स हैं, डेट ऑफ पेमेंट, डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 days फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. ठीक है ना. एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. मेशर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अंडरटुक सर्विसेज ऑफ अ डायरेक्टर मिस्टर एक्स. अब एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड. उन्होंने सर्विसेज ली, किसकी, एक डायरेक्टर जिसका नाम था मिस्टर एक्स. कितने की सर्विसेज थी, 50,000 रुपीज. ये सर्विसेज कब ली, 15 January. The invoice was raised on 1st February. इनवॉइस की डेट क्या है, 1st February. लेकिन मुझे इनवॉइस का डेट नहीं लेना है, मुझे लेना है इनवॉइस के डेट जिस दिन इशू किया ना इनवॉइस, उसके 60 days के बाद वाला दिन लेना है. ये देखो, डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. इनवॉइस कभी इशू हुआ, 1st February. उसके 60 days उसमें प्लस कीजिए तो कितना होता है, देखो 60 days का मतलब क्या होता है, 2 months. तो 1st February में पूरा 1st February to 1st March, ठीक है, उसमें 2 दिन कम होते हैं ना, 28 February तक काउंट करते हैं ना हम. ठीक है, 28 February काउंट करते तो 29 30 2 दिन कम हो गए. ठीक है, 2 दिन कम हो गए 30 days में, अगर हम 1st March पे आते हैं तो. अब 1st March से 31st March तक होता है एक पूरा मंथ. ठीक है, लेकिन अभी भी 2 दिन कम है फेब्रवरी वाले, तो आप अप्रैल में 2 दिन ऐड कर दीजिए. तो फेब्रवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, ये आपका होता है 2 अप्रैल तक. क्या होता है आपका, 60 days. पूरा फेब्रवरी मंथ, पूरा मार्च मंथ, ये होता है आपका 58 days. तो अप्रैल में और 2 दिन ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 60 days. यही तो मुझे चाहिए. मतलब सेकेंड ऑप्शन क्या था हमारे पास, सेकेंड डेट क्या थी, डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. तो 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इज 2 April. चलो ये पहला तो पता लग गया. अब और क्या था, डेट ऑफ पेमेंट. अब डेट ऑफ पेमेंट क्या दी हुई है देखते हैं. मेशर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मेड द पेमेंट ऑन 1st May. तो डेट ऑफ पेमेंट क्या है, 1st May. अब दोनों डेट्स आपके सामने हैं. डेट ऑफ पेमेंट 1st May, 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस 2 April, विच एवर इज अर्लियर. तो मे 1st May पहले आते हैं कि 2 April पहले आते हैं, ऑब्वियसली 2 April. अप्रैल के बाद आता है ना मई, तो हमको वो सिलेक्ट करना है जो सबसे पहले आ रहे हैं, और उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ये हम रिवर्स चार्ज का पढ़ रहे हैं. और फॉरवर्ड चार्ज में मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए. ठीक है, क्लियर है ये सबको, आगे बढ़े. इज इट क्लियर, प्लीज कम ऑन गिव मी क्विक आंसर्स. आपको सिर्फ हाँ या ना में आंसर देना है. Yes, ma'am. ओके ओके डी, Yes, ma'am. ओके. चलो अभी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फटाफट से देख लेते हैं. बहुत सारी चीज़ें सेम सेम भी लिखी हुई हैं, एक बार देख लेते, कुछ अलग होगा तो हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे उस पर. ठीक है ना. हाँ, ये थोड़ी सी अलग पॉइंट है. इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, मतलब आपकी जो एंटरप्राइजेस जुड़ी हुई हैं आपसे, एसोसिएटेड मतलब जुड़ी हुई हैं, और आपने सर्विसेज सप्लाई वेयर द सर्विस सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. लेकिन जहाँ से आपने सर्विसेज ली है ना, वो आउटसाइड इंडिया में रहते हैं. वो जो एंटरप्राइज है जहाँ से आपने सर्विसेज ली हैं वो आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड है. तो उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. देखो कितना इजी है. क्या, कौन सी दोनों डेट्स में से कौन सी लेनी है, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन क्रेडिट हुआ आपके अकाउंट में, विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, ये कब एप्लीकेबल होगा, जब एसोसिएटेड एंटरप्राइज से आप सर्विसेज ले रहे हैं
और वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज आउट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज सेम पॉइंट। इफ ए बी एंड सी तीनों डेट्स एप्लीकेबल मतलब डिटरमाइन नहीं हो सकती हैं, तो जिस दिन आपने अपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करी हुई है उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें भी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ, अच्छा यही सेम चीज़ उन्होंने बताई है, ये स्टेटमेंट में जो बताया ना इसी को ही उसने पॉइंट में बताया। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तब आपके पास दो डेट्स हैं, एक जिस दिन आपने अपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करी है और दूसरा डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये सिंपल सेम पॉइंट रिपीट करिए, सिर्फ उसको पॉइंट वाइज लिखा है, ऊपर हमने पैराग्राफ में पढ़ा। सर्विसेज के लिए रिवर्स चार्ज के लिए आपके पास दो डेट्स होती हैं, एक डेट ऑफ पेमेंट और एक 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ये वही लिखा हुआ है विच एवर इज अर्लियर। अब आते हैं वाउचर्स पे। आपको याद होगा मैंने वाउचर्स के लिए बताया था आपको कि सेम होता है 12 सबसेक्शन 4 एंड 13 सबसेक्शन 4, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई वाउचर्स के टाइम पे दोनों के लिए एप्लीकेबल सेम होता है। चलो कोई नहीं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, जब सप्लाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि वाउचर कहाँ यूज कर सकते हैं, सिंगल पर्पस होगा अगर, तो उस टाइम पे डेट ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और अगर मल्टीपर्पज यूज है वाउचर का तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर। ऑल अदर इंस्टेंसेस में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक पीरियोडिकल रिटर्न्स, एक अदर केसेस। अगर पीरियोडिकल रिटर्न्स आप फाइल कर रहे हैं तो जिस दिन फाइल कर रहे हैं वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और अदर केसेस में जिस दिन आप जीएसटी पे कर रहे हैं वो आपका डेट टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और ये रहा आपका एक पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन। देखो 12 सबसेक्शन 3 बताते हैं, यहाँ पे पूरे चैप्टर का तो नहीं बोल सकते, ये मेन जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज है, फॉरवर्ड चार्ज वाला एंड रिवर सॉरी फॉरवर्ड चार्ज नहीं, रिवर्स चार्ज। ये देखो 12 सबसेक्शन 3 13 सबसेक्शन 3 सर्विसेज का, जो 12 सबसेक्शन 3 गुड्स का है उसमें 3 है, ये देखो 3, और सर्विसेज में रिवर्स चार्ज में 2 ही होते हैं, याद होगा आपको। गुड्स के लिए 3 होते हैं, पहला डेट ऑफ रिसिप्ट, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट में फिर से 2 होते हैं, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना रिकॉर्ड किया है, कब रिकॉर्ड किया है, और एक डेट ऑफ डेबिटेड इन बैंक अकाउंट, ठीक है। और थर्ड होता है डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 डेज। इनवॉइस कब तक आपको इशू करना है, आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। कौन सी डेट लेनी है, इनवॉइस को इशू करने की 30 डेज के बाद। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1 जनवरी को इनवॉइस इशू किया था, तो उसके 30 डेज के बाद मतलब क्या हो जाएगा, 31 डेट। इन तीनों में से जो अर्ली होगा वो आपको सिलेक्ट करना है टाइम ऑफ सप्लाई। और सर्विसेज में अभी अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया 2 डेट्स होती हैं, एक डेट ऑफ पेमेंट और एक 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ये सारा किसके लिए है, अदर केसेस। अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज होगा तो आपने कब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया है कि आपको सर्विसेज मिली हैं, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दैट्स इट। सो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए पूरा आपका एक वो छोटा सा चार्ट। सो वी आर डन विद द चैप्टर। नाउ यू टेल मी यू हैव एनी डाउट्स, तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। और अभी मैं ट्राई करूँगी, मुझे अगर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो कल के दिन पे मैं आपका लेक्चर रख के और वो इसके ही कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं हम। अदरवाइज वी कैन स्विच ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो you find any doubt please ask me, otherwise we are done with the chapter। है कुछ डाउट, रिंकू का डाउट क्लियर हुआ ना,
अगर 10th जून आपका टाइम ऑफ सप्लाई है तो नेक्स्ट मंथ जाना है आपको, नेक्स्ट मंथ मतलब जुलाई, और उसका जो 20 डेट होगा वो आपका ड्यू डेट होगा, मतलब 20 जुलाई विल बी द आंसर।